Hello everyone, welcome to this special presentation on the Transfer of Property Act 1882. Today we will discuss sections 5, 6 and 7 which define the transfer of property, what can and cannot be transferred and who is legally competent to transfer the property. So let's begin. The Transfer of Property Act 1882 is a key law that governs the property transactions in India. This law ensures that property transfers are valid and legally enforceable. In this session, we will answer three important questions. The first one is the who can transfer property. Second one, what type of property can be transferred? And the third one, what restrictions apply to property transfers? We will also use practical examples in Hindi and English to make the concept clearer. Let's start by section 5. Section 5 gives the definition of transfer of property. It says transfer of property means an act by which a living person transfers property to one or more other living persons or to himself and others. This includes individuals, companies, associations and bodies of individuals. ट्रांसफ़र का मतलब है जब कोई जीवित व्यक्ति किसी संपत्ति को किसी और जीवित व्यक्ति को देता है। इसमें कंपनी, एसोसिएशन भी शामिल है। एग्जाम्पल, राम अपनी जमीन श्याम को बेचता है। यह एक ट्रांसफ़र है। बट इफ़ अ पर्सन हैज़ ऑलरेडी पास्ड अवे, दे कैन नॉट ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी. दे कैन ओनली ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी थ्रू द विल. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन 6. अब जानते हैं सेक्शन 6 के बारे में. सेक्शन 6 says what may be transferred. It states that any property may be transferred except when prohibited by law. Some exceptions where transfer is not allowed include: the first one, heir apparent's right. The mere chance of inheriting property in the future cannot be transferred. For example, राजा के जीवित रहते युवराज अपनी उत्तराधिकार की संपत्ति किसी को नहीं बेच सकता. Second one is the mere right of re-entry. If a tenant violates the lease conditions, the landlord has the right to take back the property, but this right cannot be transferred to another person. Means the landlord cannot transfer this right of re-entry to any other person. Third one is the easement rights. दास्ता का अधिकार. If someone has permission to use another person's land for a specific purpose, like a pathway, this right cannot be transferred separately. The fourth one is the personal interest. If a property is restricted for personal use, the owner cannot transfer it to someone else. Fifth one is the right to future maintenance. If someone is legally entitled to maintenance, they cannot transfer this right to another person. Sixth one is the mere right to sue. The right to file a legal case cannot be transferred. Seventh one, public office and salary. A government job or salary cannot be sold or transferred. Eighth one is pensions. Military, naval, air force and government pensions cannot be transferred. Ninth one is illegal transactions. Any transfer that is against public policy or law as per section 23 of the Indian Contract Act 1872 is invalid. And last one, in special cases such as tenants, defaulters and those under court of wards cannot transfer their lease or interest. Now let's understand these with few examples. हेयर apparent का मतलब होता है संभावित उत्तराधिकारी, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो भविष्य में संपत्ति या गद्दी का मालिक बन सकता है, लेकिन अभी उसका अधिकार केवल संभावित है, अनसर्टेन है. यही कारण है कि इसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, क्योंकि यह सिर्फ एक संभावना है, न कि निश्चित संपत्ति. अब जैसे आसान उदाहरण से समझते हैं. मान लो राजा और युवराज, किंग और प्रिंस का उदाहरण लेते हैं. राजा राम की गद्दी पर उनका बेटा युवराज अर्जुन बैठ सकता है, लेकिन जब तक राजा जीवित है अर्जुन का कोई पक्का अधिकार नहीं है. युवराज अर्जुन यह नहीं कह सकता कि मैं अभी ही राजा बनने का अधिकार किसी और को बेच दूं, क्योंकि यह अधिकार अभी केवल संभावित है जब तक राजा जीवित है. अगर राजा ने किसी और को उत्तराधिकारी बना दिया या कानून बदल गया तो अर्जुन राजा नहीं बनेगा, इसलिए वो अपने भविष्य में राजा बनने के अधिकार को किसी और को बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकता. समझ में आया? दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल, पिता की संपत्ति पर बेटे का अधिकार. मान लीजिए रमेश के पिता के पास बहुत सारी जमीन है.
रमेश को लगता है कि वो अपने पिता की संपत्ति का वारिस बनेगा, लेकिन जब तक रमेश के पिता जीवित हैं, रमेश को इस संपत्ति पर कोई पक्का अधिकार नहीं है। उसके पिता चाहें तो यह संपत्ति किसी और को दे सकते हैं या बेच सकते हैं। रमेश यह नहीं कह सकता कि मैं अपने पिता की संपत्ति पर भविष्य का वारिस होने का अधिकार किसी और को बेच देता हूँ, क्योंकि जब तक संपत्ति उसके नाम नहीं आ जाती तब तक वह इसे ट्रांसफर नहीं कर सकता। दूसरा राइट था री एंट्री का अधिकार। अब हम समझते हैं कि री एंट्री का अधिकार क्यों ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। राइट ऑफ एंट्री पहले होता क्या है? इसका मतलब होता है कि अगर कोई किराएदार किसी शर्त का उल्लंघन करता है तो मकान मालिक को उसे हटाने का अधिकार होता है, लेकिन मकान मालिक इस निकालने के अधिकार को किसी और को नहीं बेच सकता या ट्रांसफर नहीं कर सकता। आसान उदाहरण में समझते हैं। मान लीजिए राहुल ने अपनी दुकान अजय को किराए पर दी और एग्रीमेंट में लिखा कि अजय दुकान में शराब नहीं बेचेगा, लेकिन अजय ने इस शर्त का उल्लंघन किया और दुकान में शराब बेचना शुरू कर दिया। अब राहुल को अजय को दुकान से निकालने का कानूनी अधिकार है। इसी को राइट ऑफ री एंट्री कानूनी अधिकार है, लेकिन राहुल यह नहीं कर सकता कि मैं इस निकालने के अधिकार को किसी और को बेच दूं या ट्रांसफर कर दूं। यह अधिकार केवल राहुल के पास ही रहेगा, किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। संजीव ने अपने मकान मोहित को किराए पर दिया और एग्रीमेंट में लिखा कि मोहित यह मकान किसी और को नहीं देगा, लेकिन मोहित ने चोरी छिपे मकान को किसी और को किराए पर दे दिया। अब संजीव को मोहित को मकान से निकालने का अधिकार है, लेकिन संजीव इस निकालने के अधिकार को किसी और को नहीं बेच सकता या ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर कोई मकान मालिक अपने निकालने के अधिकार को किसी और को बेचने लगे तो इससे बहुत कानूनी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए एक मकान मालिक ने अपने इस अधिकार को किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दिया। वह तीसरा व्यक्ति, जिसका उस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, अचानक किराएदार को निकालने की कोशिश करने लगा। इससे लीगल अनसर्टेनिटी, कानूनी अनिश्चितता पैदा होंगी और झगड़े हो सकते हैं। इसी कारण कानून यह कहता है कि री एंट्री का अधिकार केवल मालिक के पास रहेगा और उसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अगला समझते हैं ईजमेंट, दास्ता का अधिकार जो था उसे समझते हैं। दास्ता का अधिकार का मतलब होता है किसी व्यक्ति का किसी और की संपत्ति का सीमित उपयोग करने का अधिकार, लेकिन यह संपत्ति का मालिकाना हक नहीं देता है। यह केवल एक सुविधा है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए दी जाती है। इस अधिकार को अलग से बेचा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। उदाहरण से समझते हैं। मोहन के घर के सामने से होकर श्याम के खेत का जाने का रास्ता है। ठीक है, श्याम को इस रास्ते का उपयोग करने का दास्ता का अधिकार है, ईजमेंट का राइट, लेकिन श्याम इस रास्ते के उपयोग का अधिकार किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बेच सकता, क्योंकि यह विशेष रूप से सिर्फ श्याम के खेत में जाने के लिए है, न कि किसी और के लिए। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। पानी निकालने का अधिकार एक मानते हैं। गांव में सुरेश के पास एक कुआं है मान लीजिए, और रमेश को उस कुएं से पानी लेने की अनुमति मिली हुई है। अब रमेश केवल अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए कुएं से पानी ले सकता है। वह यह अधिकार किसी और को नहीं बेच सकता या किराए पर नहीं दे सकता। ईजमेंट एक पर्सनल राइट होता है, ठीक है, जो संपत्ति के साथ जुड़ा होता है, न कि किसी व्यक्ति के साथ। यह सिर्फ उस व्यक्ति के लिए मान्य होता है जिसे यह अधिकार मिला है। अगर ईजमेंट को ट्रांसफर करने की अनुमति दी जाए तो लोग अनावश्यक रूप से दूसरों की संपत्ति का उपयोग करना शुरू कर देंगे, जिससे कानूनी विवाद बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला जो था वो व्यक्तिगत उपयोग के लिए दी गई संपत्ति था। यदि किसी व्यक्ति को केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए कोई संपत्ति दी गई है तो वह उसे किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगला, भविष्य में मिलने वाला भरण पोषण, मेंटेनेंस का जो अधिकार है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जैसे पत्नी को पति से भरण पोषण का जो अधिकार मिला है वो उसे किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकती है। अगला था मुकदमा करने का अधिकार। ठीक है, किसी मुकदमे में दावा करने का केवल अधिकार किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला था कोई सरकारी पद जैसे कलेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मोहन मान लीजिए सरकारी डॉक्टर है, वो अपने पद को बेचकर किसी और को डॉक्टर नहीं बना सकता। अगला था किसी भी सैन्य, नौसेना, वायुसेना और सरकारी कर्मचारी की पेंशन ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। और लास्ट, कोई भी ट्रांसफर जो गैर कानूनी उद्देश्य के लिए किया गया हो अवैध माना जाएगा। जैसे मान लीजिए यदि कोई अजय का मकान अवैध शराब के गोदाम के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, वह इसे किसी उद्देश्य से बेचता है या ट्रांसफर अवैध होगा। ठीक है, फिर कुछ विशेष किराएदारी अधिकार ट्रांसफर नहीं किए जा सकते, जैसे कि सरकार द्वारा नियंत्रित भूमि की पट्टेदारी, ये ट्रांसफर नहीं की जा सकती। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 7 की ओर। सेक्शन 7 क्या कहता है? कौन व्यक्ति संपत्ति ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 7 सेज हु कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी।
It explains who is legally competent to transfer the property. A person can transfer property if they are competent to contract under the Indian Contract Act 1872. If they have the legal right to transfer the property. Example, a minor cannot sell the property. If someone has the power of attorney, they can sell property on behalf of the owner. एक नाबालिग या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति संपत्ति नहीं बेच सकता है। दूसरा, अगर कोई पावर ऑफ अटॉर्नी से अधिकृत है तो वह संपत्ति को बेच सकता है ऑनर के बिहाफ पे। अब देखते हैं अगली वीडियो में सेक्शन 8, 9, 10 को हम डील करेंगे।